ہیں اور لاہور شہر کے حوالے سے مزید کچھ بات کر لیتے ہیں. اور جناب لاہوریوں کے لیے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے تاکہ ان کو ایکٹیویٹی مل سکے لاہور شہر میں. تو فلوٹنگ ریسٹورینٹ آپ نے بھی سنا تھا کہ وہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کام بھی چل رہا ہے. کتنا کام ہو رہا ہے, کب تک یہ مکمل کیا جائے گا, کیونکہ اس کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب جہاں پر یہ فلوٹنگ ریسٹورینٹ بننا ہے وہاں پر درختوں کی کٹائی بھی کی جا رہی ہے. تو وہاں کی صورتحال کیا ہے, اور اس پر ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ لاہور نیوز عبد القادر موجود ہیں وہیں پر اس ہی سائٹ پر. تو وہاں کا منظر دیکھتے ہیں, وہاں سے جانتے ہیں کہ کام چل رہا ہے, کتنا کام ہو چکا ہے, کب تک مکمل ہوگا. عبد القادر بتائیے گا کیا صورتحال ہے فلوٹنگ ریسٹورینٹ کی؟ ہاں جی بالکل. فلوٹنگ ریسٹورینٹ پر جو ہے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو درخت جو ہیں وہ بھی کاٹے گئے کیونکہ جو تعمیراتی کام ہے اس کی زد میں آنے والے جو درخت ہیں تقریباً 45 کے قریب جو درخت ہیں وہ کاٹے گئے ہیں. اور اس منصوبے میں جو ہے وہ 60 فٹ تک جو ہے وہ کینال تھی, اس کو مزید جو ہے وہ 20 فٹ تک جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جگہ حاصل کی گئی ہے. ابھی اگر تازہ ترین صورتحال پہ بات کی جائے, کیونکہ یہ ایک ایسا ریسٹورینٹ ہے کہ جس کے اوپر جو کھانوں کے شوقین ہیں, جو ہوٹلنگ اور ریسٹورینٹ کے جو شوقین لوگ ہیں ان کی خاصی جو ہے وہ نظر ہے. یہاں پہ جو تعمیراتی کام ہے, میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے گا کہ میں اس وقت جو ہے یہ نہر کے اندر کھڑا ہوں جہاں پہ یہ تعمیراتی کام ہو رہے ہیں, اور اس وقت نہر کی گہرائی کو جو ہے 19 فٹ تک لانے کے لیے جو ہے اس کی کھدائی کی جا رہی ہے, اور ہیوی مشینری جو ہے وہ یہاں پہ کام کر رہی ہے. اور جو سوزو سے شروع ہونے والا یہ جو ریسٹورینٹ ہے یہ جلو کے قریب جو ہے یہاں پہ جلو پارک کو جو راستہ جاتا ہے اس کے پل تک جو ہے یہ ہوگا, اور خاصا کام جو ہے یہاں پہ کیا جا چکا ہوا ہے, جس میں جو 19 فٹ تک گہرائی ہے اس نہر کی اس کو جو ہے مکمل کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو ہے وہ سٹارٹنگ وال اور اینڈ وال جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے یہ تمام کھدائی کی جا رہی ہے. اور اس حوالے سے یہاں پہ مزدور جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں. پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ٹورزم کے فروغ کے لیے یا سیاحت کے فروغ کے لیے جو ہے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. جب یہ بنے گا تو اس کے بعد جو ہے اس کی جو ہے وہ شکل و صورت ساری باہر آئے گی کہ یہ ریسٹورینٹ جو ہے وہ نہر پر کس طرح جو ہے وہ دکھائی دے گا, کیونکہ ابھی تک تو یہی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ 3 فلور پر مشتمل ہوگا, فلوٹنگ ریسٹورینٹ ہوگا. یہاں پہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بیڑا لایا جائے گا جس کے اوپر یہ ریسٹورینٹ ہوگا. اس سے قبل اسی مقام پر جو ہے وہ تفریحی جو ہے وہ مقامات بنائے گئے تھے. گرمیوں کے یہاں میں فیملیز یہاں پہ آتی تھی اور ان تفریحی مقامات میں مختلف جگہوں پر باربیکیو کے سیٹ اپ کے لیے بھی جو ہے وہ انتظامات پی ایچ اے کی جانب سے کیے گئے تھے, لیکن اب ان تمام کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا, اور اس کی زد میں آنے والے وہ تفریحی مقامات جو ہیں وہ بھی اس وقت تعمیراتی کام کی زد میں ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو درخت ہیں ان کی بھی جو ہے وہ کٹائی کی گئی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی جو ہے امر قابل ذکر ہے کہ لاہور جو ہے اس کو ہمیشہ سے گزشتہ کئی سالوں سے سموگ اور فضائی آلودگی کا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سامنا رہا ہے کہ جو فضائی آلودگی کی عالمی فہرست ہے اس میں ہمیشہ لاہور جو ہے وہ نمایاں جو ہے پوزیشن پہ ہی رہا ہے, کبھی پہلے نمبر پہ بھی آ جاتا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو فضائی آلودگی کا معیار ہے یا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ ہمیشہ جو ہے بڑھ جاتا ہے, اور اس کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو گرینری ہے یا جو گرین جو درختوں کے جو موجودگی ہے وہ کم ہے. اور اسی جو تعمیراتی کاموں میں آنے والے درخت جو ہیں وہ پرانے درخت ہوتے ہیں, اور کئی دہائیوں سے جو ہے وہ قائم درخت ہوتے ہیں جن کو کاٹ دیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے ابھی تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا ہے کہ اس کی جگہ پر جو درخت لگائے گئے ہوں تو وہ اسی قداور جو ہے وہ بن گئے ہوں. لیکن یہاں پہ بھی تقریباً 45 کے قریب درخت جو ہے وہ کاٹے گئے ہیں. خشک سردی کی وجہ سے, بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے, دھول مٹی کے اڑنے کی وجہ سے جو موجودہ درخت ہیں ان کے پتوں نے بھی ایک چادر اوڑھ لی ہے جو دست کی چادر ہے. جب تک جو ہے وہ بارش نہیں ہوگی تب تک جو ہے یہ درخت بھی جو ہے اس طرح نہیں جو ہے نکھر سکیں گے, اور ان کی گرینری یا جو ان کا جو سبزہ ہے اس طرح سامنے نہیں آ سکے گا. بہرکیف جب تک یہ تعمیراتی کام ہو رہے ہیں تب تک یہاں پہ دھول مٹی کا بھی جو ہے وہ اسی طرح عنصر رہے گا, اور تعمیراتی کام جو ہے صبح سویرے سے شروع ہو جاتا ہے جو شام گئے تک جو ہے یہاں پہ جاری رہتا ہے. ابھی اس وقت جو ہے وہ نہر کی جو ہے وہ گہرائی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو والنگ ہے, جو اس کے وال جو بنائے جا رہے ہیں, دیواریں بنائی جا رہی ہیں, اس پر کام کیا جا رہا ہے.
ठीक है जी, शहर में जो है पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट दरख्तों की कटाई की वजह बन चुका है, और जिसका अहवाल भी अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें बता रहे थे कि काम कहां तक पहुंचा है, कब तक मुकम्मल होगा। और इसकी जो बताया जा रहा है कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए किनाल पर 80 फीट जगह दरकार थी, और उसके हवाले से 45 बड़े दरख्त जो है ना वो काटे गए हैं। और इसी वाले से ही हम बात करेंगे। फिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी दरख्तों की कटाई पर बरहमी का इजहार किया गया है। ज़िले भर में दरख्तों की कटाई और तराश खराश पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि आपके सामने है हमारा इन्वायरमेंट देखें कि कितना ख़राब होता जा रहा है। एक साइड पर हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, ग्रीनरी को प्रमोट करें, और दूसरी तरफ हम दरख्तों की कटाई कर रहे हैं जो साला साल मैं कहती हूँ कि पुराने दरख्त हैं और उनको आप काटते जा रहे हैं। क्या वजह बनी है, इस पर ही बात करनी है हमने। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, इसी स्टोरी से मैं स्टार्ट करूँगी कि 45 बड़े दरख्त काटे गए हैं सिर्फ और सिर्फ इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को बनाने के हवाले से। एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत है, हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, हमने सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान बनाना है, पंजाब बनाना है, उसका एनवायरनमेंट ठीक करना है। दूसरी तरफ आप दरख्त काटते जा रहे हैं। और जिस तरह आपने बात का आगाज़ किया कि दरख्तों के काटने पे पाबंदी भी लगा दी गई है साथ में, ये कैसी पाबंदी है कि आपने पहले शहर का तहस नहस कर दिया, तमाम दरख्त काट दिए और अब पाबंदी लगा दी गई। ये तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन या पंजाब गवर्नमेंट को या अदालत को खुश करने के लिए एक मरासले की हद तक मौजूद है। अब जो दरख्त हैं उनको काटने पे पाबंदी लगा दी गई है, तो क्या पहले दरख्त काटने के ऊपर पाबंदी नहीं थी? पहले भी तो पाबंदी मौजूद थी। इससे पहले जब 2019-20 में जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन बनाया गया, क्या तब इस अमर का फैसला नहीं किया गया था कि शहर में किसी भी मुकाम पर अगर कोई भी दरख्त काटना है तो पहले जो केस है वो जुडिशल कमीशन के पास जाएगा, कमीशन उसकी अप्रूवल देगा, तो फिर उसके बाद दरख्त काटने की या शाख तराशने की इजाज़त दी जाएगी। तो फिर गुज़िश्ता रोज़ ये नोटिफिकेशन जारी करने की क्या वजह बनी? हुकूमत के इदारे तो खुद ही अपने कानून के खिलाफ है ना, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। देखें, अभी रिसेंट केनाल रोड पर 2 मुकामात पर ये वाक़यात रूनमा हो चुके हैं कि वहाँ पर दरख्त काटने के मुबैना तौर पर शवाहद मौजूद है। होता है ऐसे है मुनीबा के ये रातों रात दरख्त काट दिए जाते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया जाता है और इसमें PHA का अमला इन्वॉल्व होता है और ये दरख्तों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। अभी रिसेंट नासिर बाग में जो पार्किंग प्लाजा की तमीर का आगाज़ किया गया, वहाँ पर भी 128 जो दरख्त हैं उनको काटने के हवाले से जो शवाहिद है वो सामने आ रहे हैं। जो दाता दरबार के मुकाम पर ये रीमॉडलिंग का काम किया जा रहा है, भाटी गेट की रीमॉडलिंग का काम किया जा रहा है, वहाँ पर कुछ इस तरह का समा बनाया जा रहा है कि दरख्त ऊपर मौजूद है, साइडों से जो सारी की सारी जगह उसको खाली कर दिया गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको वाटर लॉरीज के ज़रिए पानी दिया जा रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त नीचे गिर जाएगा और फिर उसके बाद एक हीला और बहाना मौजूद होगा कि अब क्योंकि ये दरख्त सूख चुका है तो लिहाजा इसको काटना वाजिब हो चुका है और उसको दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा। बात ये है कि एक तरफ तो दरख्त काटने के ऊपर ये नोटिफिकेशन जारी करके, मरासले जारी करके अपनी फेस सेविंग की जा रही है, दूसरी तरफ क्या जो ऐलानात किए गए थे दरख्त लगाने के लिए, क्या उसके ऊपर अमल दरामद किया गया? देखें, लाहौर को 7 नवंबर 2024 को सीनियर मिनिस्टर PHA में ये ऐलान करती हैं कि हम लाहौर में लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, लाहौर के फेफड़े जो लाहौर को ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। उस वक्त ये ऐलान किया गया कि 800 एकड़ अराजी है जो कि रावी के अतराफ में है, लाहौर के अतराफ में और पंजाब भर में है जहाँ पर ये दरख्त लगाए जाएंगे। आज तक उस 800 एकड़ में से 70 एकड़ के ऊपर सिर्फ दरख्त लग सके हैं, जो कि कुल अराजी का 8% भी नहीं बनता। तो 8%, ये नवंबर 2024, आज जनवरी 2026, 1 साल 2 माह हो गए। आपने लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट को लेकर क्या किया? उल्टा जो ऑलरेडी हमारे पास दरख्त हैं उनको भी काटे जा रहे हैं।
उस लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट में ये ऐलान किया गया कि इस स्पेसिफिक एरियाज़ में जो कि मोटरवेज़ के साथ है या रूडा की एरिया में आता है या रावी के साथ साथ है, यहाँ पर 70 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। आज भी PHA के ऑफिशियल ये क्लेम करते हैं कि हमने 2,50,000 दरख्त लगाए हैं। सरकार तो खुद इस चीज़ को मान रही है और जो ऐलान किया गया था उसका ये 3.75% बनता है। अर्बन यूनिट की रिपोर्ट कहती है कि लाहौर का ट्री कवर 1% है और दीगर जो इदारे हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि 2.5 से 3% है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं कि 25% से लेके 35% तक होना चाहिए। लाहौर को किस डगर के ऊपर लेकर जा रहे हैं? कंक्रीट का शहर बनाई जा रहे हैं। तो फिर यही सूरत हाल होनी है ना, फिर स्मॉग की सूरत हाल यही होनी है, फिर लोग बीमार पड़ेंगे, फिर यही होगा। देखें फिर जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है फिर ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ेगा बिल्कुल। और अगर ये इसी तरह फ़िज़ाई आलूदगी फैलती रही, ट्री कटिंग होती रही, हमने मज़ीद दरख्त ना लगाए, तो फिर ये जो स्मोग है अभी तो हम इसको कहते हैं ना कि ये एक सीज़न बन चुका है, फिर ये 24/7 और 365 डेज़ हमारी फ़िज़ा में मुअल्लक रहा करेगा। ये सारा साल ही लोग इस स्मोग से सफ़र किया करेंगे। तो तमाम इदारों को इस चीज़ के ऊपर बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। ये सिर्फ हाई कोर्ट की डायरेक्शन की हद तक चीज़ें महदूद नहीं हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मुजाहरा करने की ज़रूरत है और जो इदारों को मैंडेट दिया गया है उस मैंडेट को देखने की भी ज़रूरत है। देखिए, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है कि लाहौर के ट्री कवर में इजाफा किया जाए, शजरकारी की जाए। ये जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाने के चक्रों में पड़ गए हैं, ये झंडा लगाने के चक्रों में पड़ गए हैं, ये जगह जगह पे जो बेंच हैं वो लगा रहे हैं, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं ये लाजमी करना चाहिए, लेकिन ये सेकेंडरी जो प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि दरख्त लगाए जाएं। अब देखें लाहौर दरख्त लगाए इन्होंने 2025 में, अभी तो ये 2-2.5 लाख जो दरख्त है वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये 2.5 लाख दरख्त लगाए हैं। ऐलान किया गया था 5 करोड़ दरख्त लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको डाउन करते करते 70 लाख के ऊपर आ गए कि हम 70 लाख दरख्त लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट सिर्फ उसमें से सिर्फ 2.5 लाख लगाए हैं। और ये मॉनसून के बाद अभी तक कुछ शजरकारी की कोई ऐसा जो कैंपेन है वो भी नहीं हो सकी। तो यहाँ से हिसाब लगा लें कि 5 करोड़ का ऐलान करते हैं, फिर एक कहा गया कि एक मास्टर प्लान बना रहे हैं हम जिसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म जो शजरकारी मुहिम है वो की जाएगी। वो भी सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद रहा। उसकी भी एक प्रेजेंटेशन जो है वो जमा करवा दी गई चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, बड़े तमतराक से ऐलान कर दिया गया कि हम इसी तरह जो शजरकारी है वो करेंगे। अब देखें इस चीज़ से बालातर होकर कि कौन सी हुकूमत किस प्रोजेक्ट को लेकर चलती है। शहर को अगर देखना है तो एक माजी में मिलवॉकी तकनीक का इस्तेमाल किया गया, हम मिलवॉकी तकनीक का वर्ड निकाल देते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री तकनीक के तहत जो जहां पर कम जगह वहां पर ज्यादा जो डेंस ये शजरकारी है वो की गई। अब देखिए 2022 के बाद आज 2026 चल रहा है, 3.5-4 सालों में अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत किसी भी जगह पर कोई भी जो दरख्त है वो नहीं लगाया गया, ना ही उस तकनीक को आगे बढ़ाया गया। असल में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आकर अपनी तख्ती लगाने के चक्कर में कि हमने क्या प्रोजेक्ट शुरू किया था उसके ऊपर तवज्जो देना शुरू कर देती है। जिस तरह लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के ऊपर तख्ती मौजूदा पंजाब हुकूमत की लगी और उसकी जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो बरहमी का इजहार किया गया, नोटिस लिया गया, मुअत्तल भी किए हैं कुछ अफसरान PHA के। देखें मुनीबा, मुअत्तल तो कर दिए गए। मैं समझता हूँ कि मुअत्तल करने के बाद क्या जो दरख्त काटे गए क्या उनका अजाला कर लिया गया? बिल्कुल भी नहीं। क्या फ्यूचर की कोई ऐसी प्लानिंग कर ली गई कि फ्यूचर में ऐसे वाकयात रूनमा की हों? एक सुपरवाइजर को मुअत्तल किया गया, 2 एहलकारों को मुअत्तल किया गया और एक ऑफिसर जिसके पास लाहौर कैनाल का इजाफी चार्ज था उससे इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। क्या ये कंपनसेशन है? देखें ये दरख्त एक जानदार है, वहां पर दरख्तों का कत्लेआम हुआ। क्या 4 बंदों को मुअत्तल करना ही इस चीज़ की अजाला करता था कि जो दरख्त कट गए वो कट के चले, अब हमने इनको मुअत्तल भी कर दिया?
انکوائری بھی اس کے اوپر لگا دے. دیکھیں جی ماضی میں کتنی انکوائریز انیشیٹ کی گئی, درخت کاٹنے کے اوپر کتنے لوگوں کو سزا دی گئی. میں نے تو صرف یہ درخت کاٹنے کے اوپر آج تک پی ایچ اے کے کسی بھی آفیسر کی یا کسی بھی ملازم کے اوپر جو میجر پینلٹی ہے وہ امپوز ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. میں نے اپنے جرنلزم کے کریئر میں دیکھا, ابھی بھی یہ اسی طرح ہوگا, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ دب جائے گا اور یہ واپس اپنے آ جائیں گے سیٹوں کے اوپر. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی وہ اپنی سیٹوں کے اوپر ہی ہیں. آپ نے صرف ان کے معطل کیا اور ایک جو انکوائری ہے وہ انیشیٹ کی ہے اور خود اس معاملے سے بری ذمہ ہو گئے. ہمیں اس چیز کو غور کرنا چاہیے, سب اداروں کی یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ درخت نہ کاٹے جائیں, ان کو رکھتے ہوئے کوئی ایسا پلان ان